You have to dream something which you cannot achieve. Director Bapu was so impressed that he took me in every film of his. Wow. By just $2. और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई वैसे. ये जब यंग जनरेशन आई है ना, शाहरुख खान वगैरह आई हैं, इन्होंने उस पैसे की वैल्यू और अपने ब्रांड वैल्यू को समझाया असल में, और इन लोगों ने हमको सिखाया. अपना खिड़की खोली, और वो खिड़की खोली तो नीचे देखा एक फर्स्ट फ्लोर था और नीचे खाना लगा हुआ था. तो मैंने कहा यार अगर गिरूंगा तो नीचे कहीं आलू गोभी भिंडी में गिरा तो लोग कहेंगे खाने का शौक इसका अभी तक नहीं गया. Time to invite one of those living legends of cinema, Indian cinema. Somebody has gone from struggle days to challenges, from theater arts to small screens and big screens, being an actor to a director, a story writer. You just, what is this this person has not done it? Being an actor, comedian, won a lot of awards, recognition, a living legend. Somebody I personally love dearly, not only just on the screen, after I met him off the screen as well. What an amazing gentleman he is. What a golden heart he has. What a values that he's got. And I can't wait to bring this amazing human being in front of all of you. You can take selfies, you can share the learnings, but give a big round of applause. Whatever you do not go anywhere. Get on the screen. Give a big round of applause to one and only Satish Kaushik. How are you, Satishji? We can hear you. I'm fine. Thank you, Dev. Thank you very much. It has been a pleasure to be here on this platform, which is so great, which inspires people, which talks to people, which drives them to achieve something in life. And I must tell you that you are a super person to do that. To your audiences. And it was great talking to you, meeting you, and today a great day for me because I was waiting for this to share my experiences, my journey, my happiness. I always call turbulence also as happiness. The shaking period of your life is also happiness. It is not. It is because ultimately it gives you happiness. So to share that, I'm very, very happy in front of such a big crowd, big people who want to achieve in life, people who want to make difference to the society. I'm very, very happy and very pleased to be on this platform. Thank you, sir. That's very, very, gracious of you and acknowledging our effort. But you saw yourself our epitome of, happiness and giving and caring for people. So let's just understand a little bit about your journey, because a lot of people have seen you on the big screen, and as an actor, producer, director, in different shapes and forms of the roles that you played in the cinema. But tell us a little bit about your journey. How did this journey actually started? How did you find I want to be an actor? Where did this bug of passion bit you? How did it, bite you, this bug? This happens with everyone. When you're a child, you want to dream, you want to, be a visionary. You want to, when you read a newspaper or see a television or, read about somebody, you want to be like that. And you know very well that right from the 60s to 70s to 80s, movies were very big impact on the society, on people, on youth. Who are these people? What they do? How they come on screen? How they move? How they talk? Where they live? And where are they from? That is always there used to be that kind of a film. I was a film buff. Means I'm born into a very lower middle class family. My father was always a hardworking man. If you know, there is a lock, very famous lock, 𝗪𝘚𝗪𝘚. 𝗪𝘚𝗪𝘚 was promoted and sold by my father. He was a salesman for that lock for Rajasthan, for Delhi and everything. And I remember my father's whole journey, whole passion, whole thing to keep his family intact, because we came from a village from Haryana. रेवाड़ी के पास एक जगह है, बहुत छोटा सा विलेज है, वहां से हम आए थे. मैं तो खैर दिल्ली में पला बड़ा था,
लेकिन हमारी रूट्स, मेरा पेरेंटल विलेज वहां से है. सो फ्रॉम a very humble background, somehow I was a dreamer. I used to dream, which I tell a lot of people now, that without dreaming you cannot achieve anything. You have to dream. You have to dream big. You have to dream something which you cannot achieve. That is very, very necessary. And that I used to do. I remember telling my father, मेरे घर में एक्चुअली कोई लिटरेचर का ऐसा कोई बहुत बड़ा बैकग्राउंड नहीं था, और हमारे हिंदी अखबार वो भी कई बार था, इंग्लिश अखबार पढ़ने का बड़ा शौक तो अपने फादर को बोलता है. that background, actually that humble background, when I was talking about this newspaper, and I always used to tell my father, पिताजी है ना, मैं अपना नाम है ना मशहूर करना चाहता हूँ, मैं ना नाम आना चाहिए. You used to say that to your dad when you were so young. Yes. और घर वो अखबार पढ़ते हुए चारपाई पे बैठ के वो करोल बाग नाई वाला गली में मैं बोलता था कि मेरा नाम है ना, और कौशिक परिवार, कौशिक नाम जो है अखबारों में छपना चाहिए. पता नहीं क्यों कहता था मैं, किस लिए कहता था. जैसे कि ड्रीमर हर बच्चा होता है, हर यंग बच्चा होता है, पर ये ऐसा कहना और उसको अचीव कर देना कहीं, इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब तक आप ड्रीम नहीं देखोगे तब तक आप कुछ सोचोगे नहीं, तब तक कुछ कैसे बनेगा असल में ना. वो जो इम्पॉसिबिलिटी को पॉसिबल बनाना जो है वो शायद इसी वजह से होता है, और शायद मेरे साथ भी इसी वजह से हुआ कि मैं मतलब मैंने ऐसा सोचा कि मेरा नाम आना चाहिए. आज किसको पता है कि वाकई में सतीश कौशिक का नाम जो है वो अखबारों में आता है, छपता है, हर जगह चलता है, सब में, ऑल ओवर वर्ल्ड चलता है. होल वर्ल्ड नोस सतीश कौशिक, नाम वो पूरा फेमस हो गया है. और एक्टिंग का भी कैसे आया वो मेरे को, एक्टिंग का भी मुझे पता नहीं असल में. हर बच्चा, देव आपको पता है, एवरी इंडियन और एनी, मैं तो कहता हूँ लिविंग पर्सन जो है ना, वो हमेशा ये सोचता है यार एक बार मैं स्क्रीन पे आ जाऊं किसी तरह, मैं देखना यार एक बार स्क्रीन पे जरूर. I had this secret dream. I tried as well. I failed some places. I tried myself in acting as well. But I am also like one of those. Yes. तो ऐसे ही मैं भी सोचता था, और मैं फिल्में देखने का बड़ा शौकीन था. घर में बहुत पिटाई हुआ करती थी मेरी. एक बार मैं, होता ना कि गाइड पिक्चर देखना, नाज सिनेमा पे चला गया था, और मैंने मम्मी के पर्स से 5 रुपए चुरा लिए थे, और जाके गाइड देख के आया, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ. और घर में आकर के इतनी पिटाई हुई जब उनको पता चला कि 5 रुपए गायब हो गए यहाँ से. तो वो और मेरे ब्रदर ने, मतलब वो गाइड पिक्चर इतनी पॉपुलर थी, उसका म्यूजिक इतना हिट था कि my brother, elder brother was like my father, and who was a great part in my career, Mr. ब्रह्मदत्त कौशिक, उन्होंने, मतलब वो मेरे को मार भी रहे हैं, और गाना भी साथ साथ गा रहे हैं. वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहाँ, तब ले ले घड़ी भर. तो गाइड देखने का ये मेरे को सिला मिला के, पर कहीं दिमाग में वो सिनेमा बैठ गया, वो मूविंग इमेज बैठ गई असल में. यार मेरे को ये करना है, ये स्क्रीन पे जो लोग करते हैं ना, शायद ये मैं आसानी से कर लेता हूँ. ये मैं महमूद साहब का बहुत बड़ा फैन था, जॉनी वॉकर का बहुत बड़ा फैन था, बाद में असरानी जी आए, तो मेरे को लगता था कि यार ये तो बड़ा आसान काम है, और ये तो मेरे को तो करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी असल में. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इट जस्ट आइडिया केम टू मी, आई परसूड इट, आई वेंट टू ए कॉलेज. मैं ऐसे कॉलेज में गया जहाँ ड्रामेटिक्स था, किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली यूनिवर्सिटी. वहां पे प्रोफेसर फ्रैंक ठाकुर मेरे टीचर थे, मतलब ड्रामेटिक्स के इंचार्ज थे. ही वाज ए ग्रेट पॉलिटिकल साइंस लेक्चरर, बड़ा दिग्गज, हिंदुस्तान में जाने माने नामों में से, ही इज नो मोर नाउ, बट, और हमारे ड्रामा के इंचार्ज थे. पता नहीं उन्होंने मुझको क्यों, जब मैं 3rd ईयर पास किया और मैंने कॉलेज के लिए बड़े अवार्ड जीते थे, एज बेस्ट एक्टर, बेस्ट डायरेक्टर, ये वो, और जब मैं वहां से निकल रहा था, एक दिन उन्होंने अपने कॉलेज में मेरे को अपने घर पे बुलाया. और उन दिनों में, मतलब किसी प्रोफेसर का अपने घर पे लॉन में बुलाना, टिकोजी के साथ चाय पीना, मतलब एक स्टूडेंट के लिए बहुत बड़े गर्व की बात होती थी कि आज प्रोफेसर साहब ने मुझे अपने घर पे बुलाया. और बुला करके उन्होंने मुझे बोला कि सतीश, I have one suggestion for you. You should become a professional actor. अब मैं कॉलेज से पास होके जा रहा हूँ, घर वाले करें नौकरी करो कहीं ना कहीं, और he is telling me become a professional actor, do stage, go to movies, act. You are a brilliant actor. Wow. तो मेरा सर, मेरा दिल तो बहुत है, पर मेरा कॉन्फिडेंस लेवल है
और मेरी कोई शक्ल सूरत ऐसी है नहीं जो हिंदी फिल्मों के लिए बड़ी वो, आई एम नॉट सो गुड लुकिंग टू बी पार्ट ऑफ मूवीज. One thing he told me that everyone should remember, he told me, Satish, don't say like that. When I see you performing on stage, you are an ultimate good-looking person for me. Wow. You are so good-looking because your talent, your craft carves your looks. Actors carve their look with their work and with their job, and that happens in every field. True. The kind of work you do, that decides who are you, how do you look, and what impact you do to the public when you come in front of them. And that is what happened. So it was, वो लोग बोलते हैं ना कि कई बार आपके अध्यापक, आपके टीचर आपको जिंदगी की सही राह दिखाते हैं. मेरे साथ किस्सा यही हुआ था कि मेरे टीचर ने मेरे को, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सोसाइटी में थे, उन्होंने मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एडमिशन दिलवाया और मेरी पूरी जिंदगी बदल गई वहां से. मैं तो साइंस स्टूडेंट था, मैंने कभी लिटरेचर नहीं पढ़ा था, लेकिन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मैं बायोग्राफीज पढ़ रहा हूँ, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ रहा हूँ, मैं यूरोपियन प्लेस, अमेरिकन प्लेस, मेरी जो स्टडी थी, जो रीडिंग थी, वो बहुत वास्ट हो गई असल में. और मुझे पता चला पहली बार क्या, अंग्रेजी इतनी, मतलब अंग्रेजी में इतने पैदल थे, समझ में नहीं आता था लिखा क्या हुआ, तो बार बार कई बार लिखता था, उनके मतलब ढूंढता था डिक्शनरी के अंदर कि इस वर्ड का मतलब क्या है. Because teaching, learning never ceases, learning never stops. That I always feel. And that is how the National School of Drama, coming to Bombay, लोग आपको, बम्बई आने का सिर्फ एक ख्वाब था कि बस अब फिल्मों में काम करना ही करना है. एंड दैट जो ड्रीम चारपाई पे बैठ के देखा था, अगर उसको पूरा करना है तो उसके लिए आपको जद्दोजहद तो करनी पड़ेगी. और शायद किसी को नहीं पता, आज तक किसी को नहीं पता कि मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा फिल्म इंस्टीट्यूट पास करने के बाद, फिल्म इंस्टीट्यूट में भी 6 महीने का कोर्स किया था, पास करने के बाद मैंने बंबई में आकर के, एंड आई वाज अ दिग्गज एक्टर फ्रॉम Delhi stage, my kind of reviews I got this thing. But when I came to Bombay, again I was a nobody. Zero. Didn't know. Starting from zero again. I didn't, zero. मेरा कोई रिश्तेदार भी नहीं था, दूर के रिश्तेदार थे जिनके घर में 2-3 दिन रहा, उनको पता चला कि मैं एक्टर बनने आया हूं, तो मेरे से बात ही करनी बंद कर दी उन्होंने. In their mind, actor is a struggle. He is a struggler, not an actor. हाँ, तो उन्होंने कहा कि यार ऐसी शक्ल का आदमी एक्टर कैसे बन सकता है. Of course मैं दुबला पतला था, तो वो वहां पर, ये किसी को नहीं पता कि मैंने 1 साल यहाँ पर प्रीमियर टेक्सटाइल मिल्स में कैशियर का जॉब किया मैंने, जो मुझे 400 रुपए तनख्वाह मिलती. वो सिर्फ मैंने इसीलिए किया. मैं लोगों को बताता हूँ, कई बार आपने दूसरे गोल को अचीव करने के लिए आप हर तरह के काम करते हैं. असल में मैं 400 रुपए की जॉब करता था टेक्सटाइल मिल्स में. मेरा काम था वहां पे पेटियां ठोकना, बिल्स बनाना, उनको टेम्पो में डालना और उनको अमृतसर, लुधियाना वगैरह भेजना असल में. और शाम को मैं आके पृथ्वी थिएटर में रिहर्सल करता था. बट माई गोल वॉज टू अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव. I was going through this, not wasting my time, just sitting at some place or a PG place and just dreaming. No, keep on working. Now Bombay is a place, it is a consumer society, consumer place. Here you keep on using your time to the best of your limit. So I think that is what I did. That is beautiful point that you made, Satishji. So through your story, one thing is very clear. I think you had a very high work ethic. What is the advice? What is the advice you can give to people in terms of work ethic? Because a lot of people have a lot of dreams, but there are a lot of pipe dreams. They don't back it up with a lot of action. So how important is work ethic, according to you? For me, I think, work is like, जैसे कहते हैं ना कि पूजा है आपकी एक तरह से, ना. तो ये कोई 50% या 60% या 70% से इसमें काम नहीं चलता है. इसमें आपका डिवोशन जो है, अगर आपको अपना करियर बनाना है, अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है और आपको एक्सेल करना है, आपको एक्सेल करना है और आपको कुछ अचीव करने के लिए कि आप अपना कुछ नाम और ब्रांड बनाएं, उसके लिए आपको 100% जो वर्क एथिक्स है आपको करना पड़ेगा कि आप अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए 100% रहें. टाइम को वेस्ट मत करें. वो चाहे आप मतलब आप कई बार लोगों को मैं सुनता हूँ, यार दे आर मतलब आई हैव नथिंग एंड मैं कई बार सोचता हूँ, यार मैं ऐसे क्यों नहीं कर पाता कि यार हम तो यार 15 दिन काम करते हैं तो छुट्टियों पे चले जाते हैं,
या भी तो मैं अचीव कुछ काम करने वाला हूँ और थोड़े दिन घर पे बैठ के सोच रहा हूँ, नहीं, मेरे से नहीं होता असल में। मेरे लिए वर्क एथिक्स जो है, मेरे लिए है कि कुछ अचीव करने के लिए अपने टाइम को यूटिलाइज करना, वो बहुत बहुत जरूरी है कि उसको, अगर आपको नॉर्मल काम करना है, इफ यू वांट टू बी वन ऑफ द क्राउड, अभी अगर क्राउड में रहना चाहते हो तो ठीक है, आजकल बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत ओपनिंग्स हैं, बहुत हुए, यू कैन बी वन ऑफ देम, बट इफ यू वांट टू एक्सेल, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट एंड यू वांट टू कि आप अपना नाम और ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 100% वर्क एथिक्स आपको होने पड़ेंगे। उसकी चाहे वो टाइम हो, चाहे आपकी डेडिकेशन हो, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे उसके रूल्स और रेगुलेशंस हो, चाहे आपको मतलब अपनी हेल्थ का ख्याल रखना हो, चाहे आपको उसके लिए रीडिंग करनी पड़े, तो वो आपको करना ही पड़ता है सब में। ब्यूटीफुल। एक्सीलेंस के लिए, मैं एक्सीलेंस की बात कर रहा हूँ। एक आपने बहुत अच्छी बात बोली। I think you said that if you want to be in the crowd, you want to be, mediocre in short, like you have no big dreams, big goals, then you can be part of the crowd. उससे मेरे को एक अच्छा किस्सा याद आया। Recently, I recorded my first rap song. वो actor वाला कीड़ा ना, artist वाला कीड़ा भी गया नहीं। So I recorded my first rap song and a spoken word, which we were playing, before we started the session. 𝘪𝗫𝗏𝗏𝗏 entrepreneur वाला खून. So it's my story actually. I've spoken and written and all that. So we were shooting this and we had, hired, professional video guys, and then we had a scene of office that we need the junior artist and all. So we had about, 15, 20 junior artists that we had. So when I was on a set and all, I was talking to one of the junior artists. So I asked him, how is this, acting career and how is this working out for you? And met one of the guy. He said, I've been doing this day for 15 years. I said, wow, 15 years. And as I normally baat hui, like, how is your lifestyle and how do you get the work? And, of course, we have agency, we have tie-ups, and we make few thousands, based on few hours. And a thought came to my mind that, he's been working in the same field for 15 years and he's not had the promotion. Like, if you're in a job, eventually you will have the promotion, no? But being a junior artist, yes. He started as a junior artist, but he's still a junior artist. Now, nothing against him, but it's just brought me the flashback of memory that you just said, that आप भीड़ में रहना है तो आप भीड़ में भी रह सकते हो। लोग 15 साल से भीड़ में भी हैं. And people like you have made something beautiful out of your life in that, so many years that you worked. So how did you get the break? And it's not bheed mein nahi rehna hai. I need to go up. And, you come from middle class family. And of course, you didn't have a lot of money. So you went from being an actor, then you became producer as well. So how did you get your breaks? And how did you kept scaling up? Next level, next level, next level. A lot of people, I know actors, they're happy being an actor. They don't want to be a director. They don't want to be a producer. Like, you've done multiple things. So how did you scale up at every level by getting the breaks? मैं देख एक एग्जांपल बताऊंगा कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता असल में। काम अच्छा है बुरा होता है, मतलब, और आप उसको उसमें एक्सेल कैसे कर सकते, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ। व्हेन आई स्टार्टेड, जैसे मैंने बताया ना, मैं टेक्सटाइल मिल में काम करता था, फिर मैं पृथ्वी थिएटर में प्लेस करता था। प्लेस में मुझे बहुत तारीफ मिलती थी, लेकिन फिल्मों में काम मिल नहीं रहा था। अगर याद करो तो एक फिल्म थी वो 7 दिन, सबने देखी होगी वो पिक्चर, अनिल कपूर की डेब्यू मेकिंग फिल्म थी। वहीं से मेरी अनिल कपूर की और मेरी दोस्ती शुरू हुई। अब उस फिल्म के अंदर बापू साहब थे, जो साउथ के बहुत बड़े दिग्गज डायरेक्टर थे, जिन्होंने बोनी कपूर के लिए पहले भी एक हम 5 पिक्चर डायरेक्ट की थी। अब ये वो 7 दिन पिक्चर बनी थी, मैं पृथ्वी में प्लेस करता था। मुझे छोटा सा रोल मिला 2 डायलॉग बोलने का, विच वाज लाइक ए जूनियर आर्टिस्ट रोल, which was like a junior artist role, और वो 2 डायलॉग का रोल मैंने एक वर्ली के टेंपल में उसकी शूटिंग थी। नसीरुद्दीन शाह के साथ सीन था मेरा। नसीर भाई को मैं पहले से जानता था, 1-2 एनएसडी, और उसके और मैंने बहुत छोटी सी पिक्चर की थी एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर उनके साथ, और जाने भी दारो कर चुके थे हम वो फिल्म करने वाले थे। तो वो 2 डायलॉग का रोल, अब मैं उसको बहुत इजीली भी ले सकता था कि 2 डायलॉग का रोल है, बोल के चला ना, मेरे को 250 रुपए दे रहा था बोनी कपूर, और अनिल कपूर ने कहा नहीं अच्छा एक्टर है, इसको 501 रुपए दे दो यार, तो 501 रुपए मिल गए, ठीक है ना। तो 2 डायलॉग जो थे वो मैंने इतने अच्छे बोले, और वो रोल इतना अच्छा किया। अभी भी आप लोग कभी देखो ना, तो वो नसीरुद्दीन शाह जी के साथ सीन है मेरा, और नसीर भाई ने मुझे बोला, यार आपको क्या जरूरत थी छोटा सा रोल करने की, क्या आपको वो थी।
तो मैंने कहा अब मिल गया तो कर लिया, अब जो मिलेगा नसीर भाई कर लेंगे, और इससे रिश्ते भी तो बनते हैं। तो कहते 2 डायलॉग बोल के कि आपको रिश्ते बन जाएंगे, मतलब तो छोटा सा रोल करके चले जाओगे। पर किसी को क्या पता था कि वो 2 डायलॉग बोलने की वजह से बोनी कपूर और अनिल कपूर से मेरी दोस्ती होगी, और मैं हमेशा जोक में कहता हूं कि मैं इनका अपनी पहली पिक्चर में करोड़ों रुपए का नुकसान कराऊंगा। रूप की रानी चोरों का राजा में। किसी को क्या पता था? But those 2 dialogues, which I excelled, again I'm saying, which I excelled, which I did so well, that director Bapu was so impressed that he took me in every film of his. Wow. By just 2 dialogues, by speaking small. But then that is a different. I didn't want to be in crowd. I excelled in just speaking those 2 dialogues also. कभी आपको किसी को चांस मिले तो वो सीन देखिएगा कि मैं दुबला पतला कैसे मैंने वो 2 डायलॉग्स बोले। तो कहने का मतलब ये कि if you don't want to stand in crowd, whatever you are doing, do your best. Do your best, that it is like this will take you to places. There's no 2 doubts that it will not take you to places, you know. Wow. Do it so passionately, so aggressively, so with so much of dedication, you know. And that I had, that I knew that these 2 dialogues will take me somewhere. And then I acted in Bapu Saab's film Prem Pratigya, in which I had a major role. नहीं तो कहाँ किसी को मिलता है? तो वो आपको जील होनी चाहिए, पैशन होना चाहिए, जो मुझ में था, और शायद उसी की वजह से भगवान ने आज तक यहाँ तक पहुंचाया। लोगों ने प्यार दिया, अप्रिशिएट किया, फैमिली की विशेष रही। So I think this is very very necessary that whatever you do, you know, you should. काम चलता नहीं है। देव पहले हम 33% में पास हो जाते थे, ठीक है ना, 33 और 50 में फिर हमको जॉब भी मिल जाती थी लोगों को की। आज यहाँ पे यार 97-98% वालों को कोई पूछता नहीं है सर। ट्रू। आज ये टाइम आ गया, तो ये एक्सीलेंस का टाइम। अगर आपको कुछ, अगर आपको भीड़ का पार्ट नहीं होना है, आज अगर आपको फेस ऑफ द क्राउड नहीं होना है, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन बीइंग, यू नो, हर आदमी वो नहीं बनना चाहता। बहुत मेरे प्ले में बड़ा अच्छा डायलॉग था, सेल्समैन रामलाल में, जहाँ मेरा बेटा कुछ नहीं बनता और मेरे को बोलता डैड मैं कुछ नहीं बनता, मैं कुछ नहीं बन सकता, और बाप चाहता है कि मैं इसको बनाऊं, इसको और बनाऊं, मतलब मैं इससे अपना बड़ा, खुद तो फेलियर रहा है खुद, लेकिन उस फेलियर को ढकने के लिए, उसको वो करने के लिए वो उसको बेटे को बड़ा बनाना चाहता। और बेटा कहता है मैं नहीं बन सकता डैड, मैं बड़ा आदमी नहीं बनूंगा, मैं कुछ नहीं बनना चाहता। और जिंदगी में कुछ ना बनना कोई बुरी बात थोड़ी ना। बहुत इंटरेस्टिंग। So it is not necessary that everybody has to become something, but if you, in today's society, in today's scenario, in today's corporate sector, in today's हमारी जो पूरी स्ट्रक्चर है, उसमें अगर आप अचीवर बनना चाहते हैं, अगर आप कुछ जिंदगी में हासिल करना चाहते हैं, आप अपना ब्रांड बनाना चाहते हैं, तो फिर आपको सतीश जी, ये क्राउड वो अलग वाला क्राउड है। यहाँ पे बहुत लोगों के बड़े सपने हैं। Yes or no, guys? All the people here, they are nobody. If they were if they were part of the crowd, they would not even be here. They invested the time, money and effort. So I think ये दूसरे किस्म के लोग हैं जो बहुत बड़ा करना चाहते हैं. They are connected to your story and the wisdom that you're sharing. और आपने जो किस्सा बताया ना, बहुत ही interesting था. That because of 2 dialogues, you got the break and you got the big movies. How I see this in our world, especially in social media, is yours were 2 dialogue. Here, when all of you guys are making content, you do not know which of your 1 content or 2 content, who is watching it, silently observing it quietly, not liking it, not commenting it, and that is going to give you breakthrough. Like how Satish ji made relationship by just that with Boni ji. This is how it works in our world. None of my actually videos, Satish ji, when I started my journey, none of my videos have become viral. None of my video posts has gone, millions of views. I've dedicatedly, just like you, chipping the way. 16 years, I did not, think of big. I was maybe bheed ka aisa tha, which was okay. But then I realized, yaar, kuch to bada karna hai. I had work ethic, but I want to do something. And then I found my passion. In 2007, 16, 17, then I started helping. I want to help people to find their passion and do something beautiful out of it. So what is the advice that you have for people who have some direction, some passion, they're working hard as well. If they want to speed and fast track the journey, like how you do not settle for, just a junior role or thing, you always aspire to be bigger and bigger and bigger. What advice would you give to the people who are
in a job. Most of the people here in job, and then some of them have just started a business some time back. So आपका advice क्या रहेगा? What advice would you give to all these people? मैं देव सबके सामने एक एग्जांपल और देना चाहूंगा, बिकॉज यहाँ पे सारे लोग वो हैं जो मतलब they really want to make difference to the society, to the country or to the world, you know. They are aspiring people. और उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर वो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और उनकी सोच ऐसी है कि वो ऐसा सीखना चाहते हैं, तो इसका मतलब राइट ट्रैक पे तो वो हैं. दे डोंट वांट टू बी द पार्ट ऑफ द क्राउड, ठीक है ना. वो तो डेफिनेटली वो आए इसीलिए है कि कहीं उनको कोई मोटिवेट करे, कोई उनसे बात करे, ताकि वो जो पाना चाहते हैं वो उसमें आसानी हो या उनको डायरेक्शन मिल जाए. मैं एक एग्जांपल और देता हूँ. मैं कोई एक फिल्म कर रहा था और मैंने वो डायरेक्ट की थी, तो उसमें एक ना PR कंपनी की एक लड़की थी, उसका नाम है मोना जसवानी, ठीक है. और वो उस कंपनी में काम करती थी. तो काम करते तो मेरे को उसके काम का तरीका अच्छा लगा, ठीक है. शी वाज वन ऑफ द मतलब वर्कर्स ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी. फिर थोड़े 1.5-2-3 साल बाद वो मेरे को एक दिन ऑफिस में मिली. मेरे को ऑन ऑफ मिलती रहती थी और मेरे को कहने लगी, सर वो मैंने कंपनी छोड़ दी है, आई वांट टू मीट यू, यू नो, मेरे को कहीं जॉब दिलवा दो, कहीं ऐसा कर दो, यू नो. तो वो थोड़ी देर बैठी रही, चाय वाय पी हमने, और मैंने कहा कि जॉब क्यों करना चाहती हो तुम तो बहुत अच्छी हो, क्योंकि तुमने मेरे सामने, मैंने जो देखा, तुमने वो फिल्म का PR हैंडल किया था तुमने अकेले, तो बहुत अच्छा किया था. तुम अपना कुछ ब्रांड क्यों नहीं बनाती, तुम अपनी कंपनी शुरू करो, ठीक है ना. क्योंकि अब ये टाइम, मैंने कहा जो गलतियां हम लोगों ने की है ना, हमने अपना ब्रांड बनाने में बहुत टाइम लगा दिया असल में. अब क्योंकि हमने तब वो सीखा नहीं था, और ना ही हम ऐसी फैमिली से थे कि हमको कुछ बिजनेस एथिक्स और बिजनेस रूल्स आते हो, कुछ हम मतलब ज्यादा वर्क ओरिएंटेड थे. तो मैंने कहा जब तक तुम अपना ब्रांड नहीं बनाओगी तब तक कुछ नहीं होगा. तो मैंने कहा भूल जाओ, थोड़े दिन के लिए तनख्वाह का लालच खत्म कर दो. तुम तनख्वाह का लालच जब तक खत्म नहीं करोगी ना, तब तक तुमको एक्चुअली कुछ कर नहीं पाओगी. कहने लगी, सर नहीं, मैं तो नहीं कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगी. मैंने क्या चाहिए तुमको, पर मंथ कितना तुम्हारा? तो मैंने कहा कि अच्छा, सबसे पहला क्लाइंट मैं हूं तुम्हारा, चलो. वाह. और मैंने उसकी कंपनी शुरू करवाई. टुडे शी इज वन ऑफ द बिजिएस्ट PR company, you know, and I'm so proud of her that I motivated her and she became something on her own, you know, and she has so many clients today, you know. उसको पैसे की चिंता नहीं, उसके नीचे 15-20 लोग काम करते हैं साल में. What तो ये बहुत जरूरी है कि आज के टाइम में ये जरूरी है कि आप अपना, हम नहीं सोचते थे, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ब्रांडिंग करना भी बहुत देर से आया असल में. पहले आपने सुना होगा, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स जो हैं वो बेचारे बाद में कंगाल हो गए, उनके घर बिक गए, उनको मनी इन्वेस्ट करना नहीं आता था, उनको ये नहीं पता था कि हमारी वैल्यू क्या है असल में. वो सिर्फ अपनी क्रिएटिव आर्ट से ही खुशी होते रहते थे कि हम बस कमाल के एक्टर हैं, लोग उनके बाद लोग तारीफ करते थे, लेकिन उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना किसी को नहीं आया. ये जब यही यंग जनरेशन आई है ना, शाहरुख खान वगैरह आए हैं, इन्होंने उस पैसे की वैल्यू और अपने ब्रांड वैल्यू को समझाया असल में. और इन लोगों ने हमको सिखाया कि आप अपने नाम को, अपने ब्रांड को, एक्टिंग तो एक्टर तो एक्टिंग करता, उसको नहीं पता था एक्टिंग मेरा बिजनेस है, मेरी कंपनी है, मेरी फैक्ट्री है. ब्यूटीफुल. You know, या डायरेक्टर ऐसा नहीं सोचता था. Very powerful words that you use, Satish ji, and I love you for being so transparent, authentic. This is so beautiful. तो आपने अपना brand कैसे बनाना शुरू किया? When you realize that I need to be a businessman, I don't need to just see. I'd say there are two category of people. One, they're passionate people. They're artists. They're techies. Singer, dancer, actor. They're techie. They're very hard-driven people. And now, then there are different second category who are entrepreneurs, who are business driven. They may be artists, may not be artists. They're entrepreneurs. They run the business, start a business, grow the business. Then I say there is a third breed, which is passionpreneur. People are passionate as well, but yes, passionpreneur. Entrepreneur as well. So how did you go from being a passionate person to becoming a passionpreneur? Because you're a successful entrepreneur as well. तो आपने ये business कैसे सीखा? ये भी देव, ये सब लोग भी जान ले, मतलब कि हर जिंदगी के पार्ट में मैं कम से कम मैं सोचता हूँ, लर्निंग नेवर सीजेस, और सीखना जो है वो कभी खत्म नहीं होता. मैं आगे भी सीखता रहूंगा. मैं आज जो हो रहा है, आज जो कन्वर्सेशन हो रही है, आपसे बात हो रही है, मैं इससे भी सीखूंगा. और मैंने जिंदगी में हमेशा उन लोगों के साथ उठक बैठक मेरी ज्यादा रही है जिनसे मैं कुछ सीख सकता हूँ, ना कि जिनको मैं कुछ सिखा सकता हूँ. ठीक है ना. मैं हमेशा उनके पास ज्यादा गया हूं जिनसे मैं कुछ नॉलेज गेन कर सकता हूं.
और मैंने अपने स्ट्रगल पीरियड में भी ऐसे ऐसे लोगों से दोस्ती की जिनसे मुझे कुछ मिल सके, ना कि अपने किसी नीचे उससे जिसको मैं कुछ दे ही नहीं सकता। जब मैं अपने आप नहीं कुछ दे सकता हूँ, मैं दूसरे को क्या दे सकता हूँ? तो अब ये जो पूरा प्रोसेस शुरू हुआ, और आपको अब मैं रीइन्वेंट पीरियड में था, क्योंकि क्या होता है ना, हमारी एज के नई जनरेशन आती है, नई स्किन पील होने वाली बात होती है ना, धीरे धीरे आप फिर ओब्लिवियन में जाते हैं, पर कहाँ आपको खड़ा होना है, तो दोबारा से वो जोश, और ये आया। नहीं तो मैं 2012 से लेके 17 तक, 17 तक, तब थोड़ा सा एक लल पीरियड था, पिक्चरें भी एक दो नहीं चली थी, काम भी मिलना शुरू कम हुआ था, लोग चेंज हो रहे थे, आपके रोल के लिए और पॉसिबिलिटीज लोगों को दिख रही थी, डायरेक्टर्स को दिख रही थी, या आप जैसी डायरेक्ट करते हो जैसी डायरेक्टर पिक्चर चल नहीं रही थी, तो अब नया क्या करो? देन यू डिसाइडेड दैट ओके यू हैव टू, हमने जो ब्रांड कभी नहीं बनाया, यू नो, वो ब्रांड अब बनाना। सबसे पहले तो मैं, होता ना कंपनियों के नाम रखते थे, ये कुछ झलक फिल्म्स और ये फिल्म, मैंने कहा सबसे पहले तो होना चाहिए द सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट। जो इतने सालों से अपने काम किया है, सतीश कौशिक नाम को वो किया है, उसको तो पीछे रख रहे हैं और कुछ ऐसा कर रहे हैं कि जय माता पिक्चर्स और ये ऐसा, उसका कोई मतलब। तो पहले अपने ब्रांड को सबसे पहले एस्टैब्लिश करो कि द सतीश कौशिक एंटरटेनमेंट बनाओ, पता चले कि ये कंपनी सतीश कौशिक की है। और तब अपना नया शुरू किया बिजनेस। मैं कभी बिजनेस नहीं करता था, आई वाज जस्ट ए वेंडर, मैं डायरेक्ट करता था, एक्ट करता था, ये करता था। फिर मेरा नेफ्यू निशांत कौशिक ने मेरे को ज्वाइन किया, माय ब्रदर बीडी कौशिक उससे पहले थे। तो फिर मैंने ऑफिस खोला, और ऑफिस जब मैंने खोला और मैंने काम करना चाहिए, मेरे पास कुछ काम नहीं था। ये मैं 2017 की बात बता रहा हूँ। मैंने ऑफिस तो खोल लिया कि अब मैं प्रोडक्शन करूंगा, पर मुझे नहीं पता था क्या प्रोडक्शन। लोग कहेंगे यार डायरेक्टर है, ये प्रोडक्शन। But then I decided on one movie, you know, and that was 𝘂𝗪𝗏, which was lying with me for so many years. This story of a man who was declared dead on official papers, and he fought for 18 years to prove that he was alive. I saw that. This story was lying for. Wow, that was such an amazing movie. I just want to share that. It's such a beautiful movie. I loved that movie, what you directed. So I decided that I will make this movie now. And I will make this movie not with a running star. I thought of Pankaj Tripathi for that actor. And that kept me rolling, you know. That kept me rolling. You know, that, okay, I'm changing myself, I'm reinventing myself. I want to make my brand the Satish Kaushik Entertainment. I have to work hard for this. I have to convince this younger generation who are sitting in the studios to not to listen to me, but I will make them listen that this is Satish Kaushik, is still passionate and still, you know, on the job, and he can do anything even at this age. You know? And I kind of, I'm still doing that. In terms of actor, I did film like 𝘀𝗵𝗿𝗲𝗍, which was a totally different role. I did 𝘀𝗵𝗵. And then, you know, this series Scam came to me, you know, and Scam, my role was appreciated so much, you know. So, and I tell you, I did, means not to be on this thing, I didn't get the kind of money which I was expecting from Scam, but I knew that I will make a difference in this role, you know? And my brand will go above, because Hansal Mehta is a great director, and if he is telling me to do this role, then he means it that I must do this role. I didn't worry about money. I said, let me. And after that, the thing started that today I'm flooded with offers as an actor. Unbelievable. So it is again, that passion rejuvenated and kind of recreated a new Satish Kaushik in me. So at any time, and ये मैं सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि कई बार हमको ताकत कहाँ से मिलती है? हमको सक्सेस से ताकत नहीं मिलती है। सक्सेस से कई बार हमारा दिमाग ही खराब होता है। हम थोड़े से वेरी हो जाते हैं, थोड़े से हमारे डायरेक्शन लेस हो जाते हैं सक्सेस से। आपको अगर सीखने को मिलता है ना, ये मैं सबके सामने बताता हूँ, वो है फेलियर से आप सीख कि फेलियर आपको थिंकिंग मोड में, एजुकेटिव मोड के अंदर लेके आता है। और मैंने अपने फेलियर से सबसे ज्यादा सीखा। जो आदमी अपने फेलियर को एक्सेप्ट कर सकता है, एम्ब्रेस कर सकता है ना, उसके लिए सक्सेस फेलियर कोई चीज नहीं है। सक्सेस भी उसके लिए कोई मतलब नहीं है। और सक्सेस फेलियर तो they are the words, you know. It is what you do that is important. मेरी रूप की रानी चोरों का राजा, which was a mammoth film, the most expensive film of India at that time, you know, Bond. But I'm still working.
Why I'm working? Because I excelled in my job in directing that film. And today, if you see on the satellite channel, people say that why did it flop? You know, कई बार किसी failure का success में conversion जो है ना, वो थोड़ी देर बाद आता है असल में. So true. That is so true. लेकिन मैं उस failure को accept करता हूँ. You know, so it's very, very necessary to be successful. Accept and embrace your failures too. I'm telling you, Satish ji, you and are that like will happen. You are like an ocean of the wisdom that is required for, I think, all the generation, not just young generation, but I think all the generation. And I'll tell you, I met a lot of people who have achieved great heights. They're not even 10% open, transparent, and humble the way you are. And I love you for this. And the things that you shared, I think very few people will share it, you know, because a lot of people wear the mask and all that. I think that's what makes you so special. And my heart goes to you. आपने जो बात बताई branding की, I think how you reconverted and reshaped and relearned and branded Satish Kaushik. This is the same thing I've been telling all the people, that you, my friend, are a brand. If you cannot own up your brand, nothing else will matter. So Dev Gadhvi, you know, I push my Dev Gadhvi brand ever. I'm just nothing in front of what you are, but I'm still learning every day. And what you said about success and failure, wow, what a profound lesson that you learn. You know, success दिमाग खराब होता है actually. जब भी मेरा कोई campaign fail हुआ ना, I actually became more alert and I actually bounced back even better. And then it just, this is very, very, yeah, it just resulted in, you know, bigger breakthrough. So I say this, that, you know, breakdown, you know, is the first step to breakthrough. When you break down, when you fail, it is an indication that your breakthrough is on the way. You're about to become a bigger and better personality because of the breakdown that you had. I think that is so powerful. और guys, एक बात और बताऊं. हाँ जी. इस सब लोगों को मैं ये बताता हूँ, अगर अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करने का भी एक तरीका होता है. मैं एक्टर हूँ ना, डायरेक्टर भी हूँ, मैं स्क्रिप्ट भी लिखता हूँ. तो मैं कभी सोचता हूँ कि अच्छा यार, ये बोलना तो ठीक है कि यार फेलियर को एक्सेप्ट कर लो, ये कोई आसान काम तो नहीं होता है. तो मैं एक्चुअली उसमें ह्यूमर इंजेक्ट करता हूँ कई बार. यू नो, मेरे साथ कई बार ऐसा हुआ है, जब रूप की रानी चोरों का राजा फ्लॉप हुई ना, तो सब डिप्रेशन थोड़ा छाया हुआ था. उसके बाद मैं एक पिक्चर में काम कर रहा था, साजन चले ससुराल, जिसके अंदर मुझे गोविंदा के साथ मेरे को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला उसके लिए. यू नो, जो मैंने साउथ इंडियन का रोल किया था. उसके पहले दिन की शूटिंग थी और रूप की रानी चोरों का राजा ताजा फ्लॉप हुई थी, डिजास्टर हुई थी. यू नो, तो उसकी शूटिंग थी किसी गार्डन में, और एक सीन था जिसके अंदर मैं लेटा हुआ हूँ और ट्रैक्टर ऊपर से निकल जाता है. ठीक है ना, तो ट्रैक्टर ऊपर से निकल जाता है. तो मैंने कहा यार, ये ट्रैक्टर मेरे ऊपर से निकलेगा, पागल हो गए, तो वो डुप्लीकेट को बुलाओ और मतलब ये ट्रैक्टर उसके ऊपर से जाए. कहते नहीं सर, वो क्या है, वो हमारा कैमरा ऊपर है, वो क्रेन नीचे आती है, तो ट्रैक्टर जाए तो सीधे आप ही दिखने चाहिए सर. तो मैंने कहा यार, ये तो बड़ा टफ शॉट है. पर उन्होंने दिखाया कि नहीं, ट्रैक्टर में जगह होती है, उसका जो स्पेस होता है, जो फ्लोर स्पेस होता है, उसमें से निकल जाएगा सर, ऐसे करके. मैंने कहा चलो ठीक है. तो मैं देखा, चला हाँ हो सकता है ये ट्रैक्टर, अगर ये फाइटर जो है एक्शन वाला आदमी है, सही लेके जाएगा तो ठीक है. ठीक है, अब वो स्टार्ट, साउंड, रोल, कैमरा, एक्शन, जैसे ही शुरुआत, ट्रैक्टर चला, मैं लेटा हुआ था, ट्रैक्टर चला, सडनली आई शाउटेड कट 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 कट. तो क्या हुआ सर? और मैंने कहा यार, ये ट्रैक्टर के ड्राइवर ने रूप की रानी चोरों का राजा तो नहीं देखी गई, कहीं ऐसा ना हो यही आदमी चढ़ा दो इसके ऊपर यार. तो लोग कहते हैं, अरे सब कहते हैं यार सतीश तू अपना मजाक खुद ही उड़ाता है. तो मैंने कहा that is the best thing. Laugh at yourself, don't laugh at others. Wow. Laugh at yourself, you will become much more stronger. Wow. Much more stronger. Unbelievable. रूप की रानी जब फ्लॉप हुई थी और मैं प्रीमियर्स कर रहा था, एक हैदराबाद के प्रीमियर में मेरी नई शादी हुई थी, तो मैं भी बिल्कुल एकदम बड़ा डिप्रेस हो गया था बहुत. पर उस दिन शायद मेरे को जिंदगी में कुछ सीखना था असल में, और मैं कमरे में बंद था. उन दिनों में नए वीडियो, ये चैनल्स आए थे इंटरव्यू लेने के लिए. मैं किसी को इंटरव्यू दे, आई वाज लिटिल हाई आल्सो समथिंग. और मैंने कहा सर यार, लाइफ पूरी खत्म हो गई यार, क्या हुआ यार, पिक्चर बहुत बड़ी डिजास्टर हो गई है यार, कैसे हो? तो मैं खिड़की पे गया, मैंने कहा सुसाइड कमिट कर लेते हैं, है ना. ऐसे गया और करके पूरा एक ड्रिंक का वक्त ऐसे पी करके उसकी अपना खिड़की खोली, और वो खिड़की खोली तो नीचे देखा फर्स्ट फ्लोर था और नीचे खाना लगा हुआ था. तो मैंने कहा यार,
अगर गिरूंगा तो नीचे कहीं आलू गोभी भिंडी में गिरा तो लोग कहेंगे खाने का शौक इसका अभी तक नहीं गया. So that is you deal with your failures, make a mockery of it, make a create humor out of it. That Wow. is very that will allow you to accept it. Once you accept it, na, it is your own. True. सक्सेस को कैसे कर लेते हैं यार, मैं तो कमाल हो गया यार, मैं तो बस जबरदस्त यार इतने का फायदा हो गया और इससे ये हो गया, मेरा घर बन गया, ये गया. आपने गले लगा लिया अपनी सक्सेस. आप फेलियर को करो ना, यार बड़ा फेल हो गया मैं यार, साला चला नहीं यार, इस बार बहुत गड़बड़ हो गया, अगली बार करने की कोशिश करूंगा, मैंने बहुत गलतियां की इसके अंदर. जस्ट डू दैट. Wow. I am mind blown. I'm actually mind blown. This is the sign that we are. How many of you are mind blown? Just put in type in chat box. How many of you are actually mind blown? And this is the wisdom that is coming from your real experience, and it is not a bookish and theory knowledge. And thank you so much for sharing. Very very necessary that. नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि और ये जो चीजें जो है ना, ये रुकती नहीं है असल में. मैं देखो, जिंदगी हमको एक मिली है असल में. अगर हम इसमें कुछ करना चाहते हैं, और शायद हम कुछ करके सिर्फ अपने लिए नहीं, हमको तो जाना ही है एक ना एक दिन. अगर हम पीछे कुछ ऐसा छोड़ना चाहते हैं, कुछ लेगेसी छोड़ना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए छोड़ना चाहते हैं, चाहे अपना परिवार हो, चाहे अपना दोस्त हो, चाहे आपका नाम हो, चाहे आपका ब्रांड हो, चाहे आपकी कुछ सीख हो जिससे कि पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों लोगों को कुछ ना कुछ मिले, तो उसके लिए तो बहुत जरूरी है कि आप कुछ ना कुछ जिंदगी के हर मोड़ के ऊपर जो है ना, आप कुछ ना कुछ सोचते रहे. मतलब मैं कई बार आप जैसे लोगों को देखता हूँ, मतलब दिस बिजनेस हैज ग्रोन सो मच, मोटिवेटिंग पीपल अबाउट बिजनेस, अबाउट बीइंग समथिंग डिफरेंट, कि कितना काम है. और आप लोगों की वोकैबुलरी, आपके किस्से, आपके एनेक्डोट्स, आपकी जिंदगी की सीखें, है ना, ये सब चीजें होती है. कई बार होता है यार, मैं कहीं काम कर नहीं पाया यार कुछ, जबकि मैं एक्टर हूँ, डायरेक्टर हूँ, प्रोड्यूसर हूँ, राइटर हूँ, टेलीविजन में कर चुका हूँ, रेडियो में कर चुका हूँ, इवेंट्स में करता हूँ, तो सारे काम में कर चुका हूँ. या अब मैं भी कई जगह के लोग बुलाते हैं तो मैं अपने, चलो जैसे कि आज कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता हूँ. पर अभी भी कुछ चीज ऐसी पड़ी हुई है जो मेरे को लगता है यार, मेरे को अचीव करनी है यार, मेरे को करना है यार, ये मैं कर नहीं पाया, और कुछ चीज ऐसे पड़ी हुई है अभी तक. मैं 5 साल हो गए हैं, मैं शुरू नहीं कर पाया. कि मेरे को बहुत लोग बोलते थे कि आप एक्टिंग स्कूल खोलें. मैं एक्टिंग स्कूल खोलने के पक्ष में था नहीं. मुझे लगा पर यस, बट व्हाट लाइफ हैज गिवन मी एज एन एक्टर, आई मस्ट डू समथिंग. और मेरा वो सपना है कि अब मैं अगले सपने पे लगाऊंगा, क्योंकि मैं इतना सुपर बिजी हूँ. लेकिन मेरे को लगता है वो काम कब करूंगा मैं यार कब शुरू करूंगा. अच्छा, नेक्स्ट जनवरी से शुरू करता हूँ, नहीं नेक्स्ट जुलाई से शुरू करता हूँ, नेक्स्ट, ऐसे करते करते मेरे को 4 साल हो गए, लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा. और वो है मेरा बड़ा पैशनेट प्रोजेक्ट है, वही स्केट, जहां मैं अपनी एक्टिंग जो ना, इट इज कॉल्ड सतीश कौशिक एक्टिंग थेरेपी फॉर एवरीवन. इट्स कॉल्ड स्केट. Wow, that's so nice. Nice name. Satish, what acting can do to your life. Beautiful. We actors are blessed. That we play so many lives in one lifetime. That's true. I mean, I love it. कितनी चीजें भरी हुई. हाँ, तो मैं मतलब आपसे बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं 900 जितने भी लोग अटेंड कर रहे हैं, मैं आज भी उनका हिस्सा हूं. मैं आज भी मैं वो ड्रीमर हूं, और आज भी मैं वो करना चाहता हूं जो मैं नहीं कर पाया, जो मैं अब तक मेरी उसके अंदर बोला. तो मेरे लिए ये जो सेशन है, इट इज नॉट दैट आई एम शेयरिंग माय लाइफ एक्सपीरियंस, इट इज दैट टॉकिंग टू यू एंड रिएक्शंस जो आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं. तो इट इज अगेन ए लर्निंग प्रोसेस फॉर मी. इट इज कि नहीं यार, हमको जो हमारी चीजें बची हुई हैं उनको हमको कैसे अचीव करना, और उसको सही स्वरूप देना है, कि आप जो करना चाहते थे वो कभी कर लिया आपने. So the question is, can an average job person or below average job person, can they start their own business? We are made like that. Our mind is made like that we are not average. We are average by our thoughts only. What we decide about ourselves. Our mind is super excellent mind, which is created by God. So it is how you push yourself. If you start thinking about yourself, you're average or you're below average, and you cannot start this, you will never be able to achieve it.
push yourself, because your mind is equipped with that only. Your mind is equipped with excellence. The kind of data it has, the kind of knowledge it has is just unimaginable. You know, that is why great minds do great things. So don't think like that. Don't put that as there, because you can. Average or below average person also can achieve excellence, can start the business, can start the own brand, but kind of feed your mind with that thought. Feed your mind, feed the computer in your mind that you want to achieve that. It will happen. It will happen. Because if you have come here to this platform, it is for the fact that you don't want to be below average or average person. You have something in your mind that you don't want to be below average or average person. So train your mind like that. It's very, very necessary. And the day will not far that you will achieve what you want to do in life, 100%. Beautiful. I love it. There's the question from Rahul. What is the importance of taking risk in life? Without a risk, nothing is possible. A risk, we have come into this world. It is a big risk, is a big risk that you don't know where you will go, which family will go, which species you will go. When you are born, how you have gone sent. It is a big risk in any case. The kind of world we live in, there are so many problems. There are so many political problems, social problems. Every country has some issues, between countries. So there are issues like that. It is so. Risk is part of your career. Risk is part of your whole journey which you want to get onto. A risk is something which is, you cannot achieve anything without risk. You have to be very brave enough to take risk in life. Everyone does that. Who didn't take risk? Like Dev, you said that when you thought that your thing was not going viral, when you left the job, what you were doing, and you wanted to achieve this, you took a risk. I was telling about Mona, you took a risk to start this, and that is why you are there. You took a risk, and I took a risk from a very humble background, from a lower middle class background. I came to Mumbai. I took a risk that maybe जो 5-10 हजार की नौकरी कर सकता था वो भी हाथ से निकल गई यार. कोई 10-15 हजार की नौकरी करता था वो भी हाथ से निकल. रिस्क लिया मैंने. रिस्क मैंने अभी भी लिया कि मैंने अपनी कंपनी शुरू कर दी, मैंने ऑफिस खोल लिया, मेरे पास कुछ काम नहीं था, समझे ना, या तो काम कैसे आया? वो रिस्क लिया तो काम आया. So risk is part and parcel of your success and what you want to achieve. मोना अगर रिस्क ना लेती और वो जॉब कर लेती, वो मेरे को जॉब के लिए आई थी मेरे पास. मैंने उसको कहा अपना ब्रांड शुरू करो, तो शुरू किया उसने, तो उसने रिस्क लिया. थोड़े दिन पैसे नहीं आए उसके पास, 6-8 मतलब 1 साल तक वो बेचारी बहुत हो रही है असल में. इसलिए मैं सबको बोलता हूँ कि जब तक रिस्क नहीं लोगे तब तक वो आजकल वो स्कैम में डालोगे ना, बहुत जबरदस्त. रिस्क है तो इश्क है. बिल्कुल. रिस्क से आपकी दोस्ती होनी चाहिए. रिस्क इज एक्चुअली योर फ्रेंड. आपका जो दुश्मन है वो कंफर्ट है. कंफर्ट से दुश्मनी होनी चाहिए कि भाई इस एक जगह पे टिकना. इफ यू सी आई से दिस सतीश जी, कि अगर आप पानी को देखोगे ना, अगर पानी कितना शीतल होता है, कितना बढ़िया होता है, सो इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ, बट यू टेक दैट वाटर and keep it at one place stagnant, it's going to become poisonous. So that is how our life is. बढ़ते रहना, रिस्क लेते रहना. जितना आप ज्यादा रिस्क ले रहे हो, वो भी कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, अपनी जान जोखिम में मत डालना बस. राइट, लाइक सतीश जी ने जैसे मूवी शॉट के लिए किया था. नहीं, अब आप किसी को भी देखो, आप स्पोर्ट्समैन को देखो, आप आज इतने बड़े बड़े स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें लाइफ का बड़ा रिस्क होता है. आप कैसे बनो यार, सबसे बड़ा रिस्क तो हम लेते हैं. अब एक किसी वैज्ञानिक ने या उसने एक बना दी चिड़िया जैसी चीज, ठीक है ना. हम एयरपोर्ट जाते हैं, दुनिया जाती है, वहां जाती है, सबसे बड़ा रिस्क है यार. क्या आप जमीन से मतलब 36,000 फीट की ऊंचाई पे एक्चुअली कोई चीज आपको उड़ा रही है, रिस्क है सबसे बड़ा. बट देन दुनिया लेती है रिस्क यार वो. तो अब वो अगर उसको जोड़ा जाए तो वो उड़ान ही तो है. बिल्कुल. तो हर उड़ान के अंदर रिस्क तो है ही ना, रिस्क फैक्टर तो आपका है ही. और ये रिस्क को भी
आप देखो कई बार क्या होता है, आप रिस्क लेते हैं, आप अचीव करते हैं, आप थोड़े से कंफर्टेबल होते हैं। मैं तो कहता हूँ जैसे ही आप कंफर्टेबल फील होना शुरू करें ना, आप अपना नेक्स्ट स्टेप कुछ अनकंफर्टेबलनेस का कर दें। क्योंकि मैं हमेशा सोचता हूँ कि अचीवमेंट का जो पत्थर होता है ना, मील का पत्थर जो होता है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया ना, तो आपकी ग्रोथ खत्म है। मेरे लिए क्या है कि अगर ये स्टोन पड़ा हुआ और स्टोन तक मैं पहुंच गया हूँ और मुझे लगा कि स्टोन, ये मील के पत्थर तक मैं पहुंच गया हूँ, तो वहां पहुंच के अगर मुझ में ताकत है ना, तो उसको ठुड्डा मारो, थोड़ा और आगे कर दो, ताकि चलने का रास्ता और बन जाए। वाह, क्या बढ़िया बात बताई आपने। ब्यूटीफुल। स्टैटिक रख दोगे तो उसका मतलब नहीं बनता असल में कुछ। Beautiful, beautiful. I love it. I love it. No, I wish you the best, Satish ji. Thank you so much. आपने अपना कीमती समय निकाला. You know, inspired us through your real life experience. I will truly not forget the examples that you're given about how you handle the tough times, and you loved, you know, गले लगाया आपको failure को, you know, कि कोई नहीं, अगली बार बढ़िया करेंगे. So on behalf of entire Passionpreneur community, thank you so much for taking the time. Wish you the best. God bless you. Thank you, Dev. It was a great session, and all the passionpreneurs, I must congratulate them and tell them that life is here in today's world, which is going through a lot of wobbling time. You know, it is, and especially the business community, where we are always scared with our achievements and things like that. It is time to correct that and get onto the goals, which will, that you should, your presence and your thoughts and your entrepreneurship and your what you do, your brand should make a difference to the world. It is not about earning money today. It is not earning it is not about that you get a lot of money in life. It is what you make a difference to the society and to your country and to the world. You know, that is very, very important. Beautiful, beautiful. Thank you so much, Satish ji. Thank you. Give it up for one and only, the living legend, Satish Kaushik. Thank you. Thank you. Thank you.